हेलो स्टूडेंट्स, इजी इंग्लिश विद जगजीत सर आपका स्वागत है। लास्ट टाइम ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਸ ਕੀਤੇ ਆ ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ परफेक्ट, और काम एने समय तो हो रहा है। जो कंटिन्यू टेंस है भी काम हो रहा है, कितना समय तो हो रहा है। जो वही कंटिन्यू टेंस जो समय नाल ऐड हो जाता है फिर वो चौथा टेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। हुण ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਟੈਂਸ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਸ ਹੈ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, जो चीज डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਹਨ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ डेफिनेट नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं, क्योंकि यह प्रेजेंट काल है और यह अनिश्चित है, यानी डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट है। और दूसरी गल, इसका जो दूसरा नाम है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हुन सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनेट दोनों का भाव इको ही है, दोनों का रूल इको ही रूल है। इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना भी सिंपल प्रेजेंट की है, क्योंकि छोटे बच्चे ਨੂੰ ਅਸੀਂ नर्सरी ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ प्राइमरी तक सिंपल प्रेजेंट कराने ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लो जी हुन ਅਸੀਂ रूल्स करते हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ जितने भी रूल्स करांगे, जितने भी टेंस करांगे, उस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ तीन मेन पॉइंट्स देखेंगे। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, यानी हां वाचक सेंटेंस, हां वाचक वाक्य। दूसरा है नेगेटिव यानी नकारात्मक, जिस ਵਿੱਚ नहीं करदा, नहीं हुंदा, इस तरह के भाव के जो सेंटेंस होंगे वो आएंगे नेगेटिव सेंटेंस। इस दे की रूल है। फिर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी प्रश्न है, जिस ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਾक्य ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾक्य ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਨਾਵਾਚਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ भी बच्चा पढ़ता है, ओदा की रूल है बच्चा नहीं पढ़ता। की बच्चा पढ़ता है, की बच्चा नहीं पढ़ता है। ए जो नहीं और की दोनों जो मिक्स हो जाते हैं फिर ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इंटरोनेगेटिव सेंटेंस। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ रूल्स डिस्कस करने हैं। सब तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, सब तो पहले लगता सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो काम करने वाला है, जिस बारे गल चल रही है। इसदा अध्यापक पढ़ाਉਂਦਾ है, बच्चे खेलते हैं, कुड़ियां गाਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, कुड़ियां पढ़ਦੀਆਂ ਹਨ, माता जी रोटी पकाਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ देखो जितने भी सेंटेंस बोलते हैं वो सारे इस तरह होते हैं भी करता है, आदत है, कैसे भी करता है, नहीं पता, डेफिनेट नहीं है। करते हैं जे प्लूरल है, करदी है ਇਹਦਾ मतलब अजय भी करदी है, ਉਹਦੀ आदत है, ਜਾਂ ਫਿਰ अजय भी कर रही है, डेफिनेट नहीं है, पक्का नहीं है। करदा हां यानी मैं, ਜਦੋਂ आई ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਤਾ ਹੈ, करते हैं, जाती है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਰੂਟੀਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ यानी ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, अनिश्चित तरह का टेंस है, काल है। लो जी ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਸ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, जे ओ भी यानी ज्यादा यानी असि यानी हम आ जाता है, यू यानी तुम, चाहे ओ एक है या तुसी ज्यादा हो, जे यू आ जाता है या दे यानी ओ जो ज्यादा ने। जदों आई वी यू दे आ जाए ਜਾਂ ਫਿਰ प्लूरल आ जावे, ए दे प्लूरल है, जे इथे गर्ल्स आ जावे, बॉयज आ जावे, या होर इस तरह शब्द प्लूरल वाले कोई शब्द आ जाए बहुवचन वाला, फिर असि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म
वर्ब ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 1000 ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ इस वीडियो अगली वीडियो पाओगे जो वर्ब ने वो किस तरह रूप बदलते हैं वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म की है फिर उसकी जो पास्ट फॉर्म की है फिर उसकी पास्ट पार्टिसिपल वाली केड़ी लाइन है केड़ा रूल है ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ वर्ब ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ दूसरा रूल है भी आई अफर्मेटिव सेंटेंस है ਜਦੋਂ सब्जेक्ट होवे ही या she या it ਹੁਣ he ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ she ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ he ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ थर्ड पर्सन का मतलब मेरे और ਤੁਹਾਡੇ I और you तो अलावा कोई तीसरा जो सामने नहीं है जो मेरे और ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ अलावा है और कोई सिंगल है नहीं थर्ड पर्सन है वो भी इकल्ला है ऐसे उसमें करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर इधर कोई ही है एक बंदा she है यानी कोई एक लेडी है स्त्री है इट लगाने आ किसे एक वस्तु ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਜੀਵ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੀ ਔਰ she ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ she ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ verb ਨਾਲ s ਜਾਂ es ਆਉਂਦਾ ਹੈ verb ਦੇ ਨਾਲ s ਔਰ es ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ s ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ e ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ he she it ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਐਕਟ ਦਾ ਜਾਂ ਐਕਟਸ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ allow allows ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ allow bake ਇੱਥੇ e ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ es ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ s ਲਗਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ es ਐਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ care ਹੈ लास्ट ਵਿੱਚ e ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ s ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੋ s ਔਰ es ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ e ਲੱਗਾ ਤਾਂ s ਲੱਗੇਗਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੈਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੈਚਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ e ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਰੰਤੂ e ਔਰ s ਦੋਨੋਂ ਲਗਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ s ਔਰ es ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ he she it ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇ फादर होवे मोहन होवे महेंद्र होवे वो की करता है जांदा है फड़दा है लिखदा है सौंदा है तुरदा है ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਹੈ ਦੀ ਹੈ ਦੇ ਹਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ s ਔਰ es ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੂਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ परंतु वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म कदों लगनी है जदों होए I we you they या फिर बहुवचन यानी प्लूरल होवे दूसरी गल दूसरा रूल पहले सब्जेक्ट आएगा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आएगी उस नाल फिर s या es नाल ऐड होके लगेगा पर वो लगेगा कदों जदों की ही होवे she होवे यानी एक बंदा एक जनानी इट होवे एक जानवर एक वस्तु होवे या एक नाम किसदा होवे माता पिता राम सिंह साहब रमन एक नाम होवे एक जानवर होवे किसी भी एक प्रकार दे जानवर दा बोध होवे ज्ञान होवे दस्या होवे ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ verb फर्स्ट फॉर्म ਨਾਲ s या es ਕਿਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ verb ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ आप काम करते हैं इससे जो वर्ब है जो क्रिया है टेंसेस विच क्रिया का बहुत बड़ा मुकाम है बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा क्रूशियल रोल है क्योंकि एक है मेन वर्ब है मुख्य क्रिया है उस तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगते हैं केड़े-केड़े संसर्गी या सहायक क्रियावां लगदी हैं उस तो बाद की कुछ लगता है इस बारे ਅਸੀਂ पहले गल कर चुके हैं और सब तो पहली गल है सानू सब्जेक्ट बारे पता होना चाहिए और सानू उस वर्ब बारे पता होना चाहिए ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म लिखांगे या फिर उस नाल s ਜਾਂ es ਲਗਾਵਾਂਗੇ s ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ es ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਰਬ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ you work यानी ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ you work ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ यानी you ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ I we you they ਜਦੋਂ you ਆਏਗਾ ਤੇ verb ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ यानी you work ਜਾਂ ਫਿਰ you do your work ਇੱਥੇ you work ਐਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ you do मेन वर्ब है मूल क्रिया you do your work आप अपना काम करते हो ऐ करते हो जाते हो आते हैं ऐ जो सेंटेंस ने इसका मतलब है भी हुण आंदे है
आ रहा है क्लियर नहीं है, आदत है ये भी पता नहीं, परंतु कई बार आदतां बारे जिदा पिता जी अखबार पढ़ते ये आदत है उन्हां दी, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ मतलब ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, रूल याद करते हैं, उस ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਕੰਮ करते हो, यानी you work, work ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ work, you do your work, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ you do ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, इस बारे सानू नहीं पता। इस करके जो क्रिया है, जो टेंस है, वो इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल है, क्योंकि पिताजी की ने, पिताजी ने ही, यानी एक बंदा है और शी एक औरत है, एक जानवर है, एक नाम है, फिर ਅਸੀਂ वर्ब ਨਾਲ s या es लगाओगे। ਇੱਥੇ जो वर्ब है, जो क्रिया है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, ਇੱਥੇ पढ़ते हैं मतलब तो रीड ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ father read the newspaper, ठीक है। रॉन्ग है क्योंकि इथे फादर है, क्योंकि इथे ही है, इस करके ਅਸੀਂ इस रीड नाल लगावांगे s, फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। हुन इथे दा क्यों लगा, इस बार ਅਸੀਂ पहली वीडियो देखी सी आर्टिकल्स दी ए एन और दा किदां लगदा है, किहड़ी कंडीशन है, ਅਸੀਂ इथे लगाया द न्यूज़पेपर। दोबारा सुनो, फादर क्योंकि वो ही है, ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ s ਜਾਂ es ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਯਾਨੀ w r i t e ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ s ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਰਮਨ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰਮਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ you, ਇੱਥੇ ਹੈ ਰਮਨ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਰਮਨ, क्योंकि ਇੱਥੇ जो क्रिया है ना वो लर्न है, ऐसे मिटा देना। रमन की करती है, जो इंग्लिश दे सेंटेंसेस दा जो पैटर्न है, पहले आंदा है सब्जेक्ट, फिर आंदा है वर्ब, फिर आंदा है ऑब्जेक्ट। हिंदी और पंजाबी च की हुंदा है, पहले लगदा है कर्ता, फिर लगदा है कर्म, फिर लगदी क्रिया। रमन पाठ याद कर दी क्रिया है, जो पाठ है, जो किताब है, वो ऑब्जेक्ट है, वो कर्म है। परंतु इंग्लिश विच इसका सीक्वेंस चल जाता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब यानी क्रिया, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ देखते हैं रमन ਅਸੀਂ सब्जेक्ट लिखिया, उस तो बाद लर्न, क्योंकि जो रमन है वो शी है, एक कुड़ी है या एक स्त्री रूप है, इस करके ਅਸੀਂ लिखा सी लर्न। ਅਸੀਂ लिखांगे लर्न, सेम टू सेम लिखा लर्न। आगे लिखांगे रमन पाठ याद करती है। रमन लर्न हर लेसन या रमन लर्न द लेसन, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ लेसन। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ रूल ठीक लगा कि नहीं लगा, ਸਾਨੂੰ पता है ਇੱਥੇ फादर ਸੀ, s आ गया सी क्योंकि वो ही सी। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ रमन, ਇੱਥੇ रमन she है, इसका मतलब ਇਹ वाला रूल आएगा, पहले सब्जेक्ट यानी रमन लगा देता, उस बाद वर्ब ਦੇ ਨਾਲ s या es लगेगा। ਇੱਥੇ वर्ब है learn, ਇੱਥੇ आएगा learns, यानी वो याद करती है। ਇਹਦਾ मतलब सिंपल प्रेजेंट, ਇਹਦਾ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला सेंटेंस ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਹੈ sing, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਵਰਬ यानी क्रिया आएगी, ਇੱਥੇ sing, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ sing। ਸਾਹਿਬ sing the song, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ the song। ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਵਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ I V U ਦੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ s ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ he she it ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮਿਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ, ਵਰਬ ਨਾਲ s ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ she ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ sings, ਸਾਹਿਬ sings the song। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, मां मुझे प्यार करती है। सब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट है मदर, वर्ब की है, वर्ब है लव्स। क्योंकि मां एक है, क्योंकि वो शी है और एक नाम है, इस करके आएगा मदर लव्स। क्योंकि ऐसे लव फर्स्ट फॉर्म है, लगेगा एस या ईएस, क्योंकि ऐसे ई पहले तो लगे, इस करके एस लगे नाल मदर लव्स
मी। जे बहुत ज्यादा जल्दी है तो आएगा मदर लव्स मी वेरी मच। इस तरह सेंटेंस बनावांगे। फिर है असी रोज कबड्डी खेलते हैं। असी दा मतलब वी, असी दा मतलब है हम रोज कबड्डी खेलते हैं। जो रोज यानी टाइमिंग की गल है, टाइम में आ जाएगा लास्ट विच। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ। ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਵੀ और जो इसका वर्ब है वो है प्ले। क्योंकि ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ और ਅਸੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ I we you they। ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ ਤੇ verb ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ प्ले। we play plays नहीं आएगा क्योंकि ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ और we ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ verb ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। we play ਕਬੱਡੀ एवरीडे रोज। टाइम ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ सन। परंतु ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ, ਦਾ ਅਰਥ, ਦਾ सन, ਦਾ ਮੂਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਉਸ ਅੱਗੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਦਾ सन, क्योंकि वो एक प्रकार दा है, इस करके कैपिटल एस लगाता ਆਪਾਂ ਦਾ सन। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ सन ਕੀ ਹੈ कि वो आई है, वी है, यू है, दे है, या फिर वो ही है, शी है, इट है, एक नाम है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ सन ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ the sun rises, क्योंकि ਉੱਥੇ ਰਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉदय ਹੋਣਾ, ਉਗਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਜ਼, क्योंकि वो एक है इस करके rises। the sun rises किथों उगदा है? पूरब से। पूरब विच इसका मतलब है in the east, क्योंकि सानू पता है पिछली वीडियो च ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ जो डायरेक्शन से नाम ਦੇ ਨਾਲ नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ਅਸੀਂ लगाने हैं the। इस करके the sun rises in the east। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਸਟੇਕ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ सन ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਰਾਈਜ਼ਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਰਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ यानी ਚਾਈਲਡ, ਦਾ ਚਾਈਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਮਨ ਨਾਉਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਬੱਚਾ। ਫਿਰ ਆਏਗਾ ओबे के ओबेज, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ओबे, O B E Y। परंतु ये रॉन्ग है क्योंकि ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ है ना, वो बच्चा ही है, क्योंकि वो एक है, एक नाम है, एक बच्चा है, इस करके आएगा ओबेज। the child obeys। आगे क्या आएगा? अपने माता पिता, लिखेंगे his parents। parents का मतलब माता पिता। अगला सेंटेंस है साडे को लास्ट, राम सिंह जी मैनू रोज फोन करते ने। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਹੈ ਕਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਕਾਲ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਲ, और क्योंकि राम सिंह ही है और एक नाम है, इस करके आएगा calls। किसनु? मी, ऑब्जेक्ट आ गया, calls me every day, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, 10 ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਾਨੀ पॉजिटिव सेंटेंस तो बाद ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ यानी नकारात्मक वाक यानी नावाचक वाक ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ यानी इस तरह ਦਾ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ही शी इट या एक नाम एक जानवर होवे तां फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आएगी, उस नाल एस या ई एस नाल जुड़ के आएगा। एस कदों लगता है?
ਈਐਸ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ। ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। रूल्स एक बार फिर रिवाइज कर लेने। रूल्स ने पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज, दोनों चो एक आएगा, परंतु वो किद्दां आएगा, क्यों आएगा, ओदा की रूल है, हुणी करदे हां। उस तो बाद जो नोट है वो मेन वर्ब तो पहले आएगा। और जो वर्ब दी हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फॉर्म्स बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये 3 फॉर्म वर्ब ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਇਹ ਜੋ ਫਾਰਮ ਨੇ वर्ब ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਡੂ ਨੋਟ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਆਏਗਾ। और वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये डू डज लग चुका है। उस तो बाद डू कदों आंदा है, फिर दोबारा असीं रिपीट करते हैं। डू नैगेटिव सेंटेंस उदों आंदा है जदों कि आई वी यू दे, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, गर्ल्स डू नॉट, बॉयज डू नॉट, बर्ड्स डू नॉट, जदों भी प्लूरल होएगा इन्हां विचों आई वी यू दे विचों कोई एक होएगा तो डू नॉट लगेगा। डज नॉट कदों लगदा है, उस तरह जिस तरह पहले एस और ई एस लगा सी उसी ही शी इट, इत्थे डू ते ई एस लगा, ਇਹਦਾ मतलब है डज हो गया ਜਦੋਂ ही ਹੋਵੇ, शी ਹੋਵੇ, इट ਹੋਵੇ, यानी एक नाम होवे, एक जानवर होवे, एक वस्तु कोई काम करती होवे, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ डज नॉट। कदों ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ रूल्स नैगेटिव दे और पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव दे याद रखने हैं। एफर्मेटिव च लगा सब्जेक्ट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस कदों लगा। हुण असीं गल करते हैं नकारात्मक दी डू नॉट डज नॉट किवें, तुहानूं पता है। पहला सेंटेंस है मैं काम करदा हां, आई वर्क, इत्थे लिखदा है ਉਹ अपना काम करदा है, नहीं ਉਹ ਦਾ मतलब है ही, करदा है नाल पता लगदा है ही, ਇਹਦਾ मतलब ही डज, डज का मतलब है करता है। डू, डू नाल ईएस लगाया, डू मेन वर्ब है, असी ईएस लगाया, ही डज हिज वर्क। हुण जदों असी नैगेटिव बनावांगे वो अपना काम नहीं करता, जदों नहीं करता असी देखांगे डू नॉट के डज नॉट, नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डू नॉट डज नॉट जो की आएगा, इत्थे असी लिखिया ही, ਇਹਦਾ मतलब है हुण इत्थे आएगा ही डज हिज वर्क, जो नॉट आएगा रूल आएगा डज नॉट, ही डज नॉट, इत्थे पहले डू सीगा, डू दा डज हो गया सी, नैगेटिव विच डज नॉट, इत्थे आएगा डू हिज वर्क, ਇਹਦਾ मतलब वो अपना काम नहीं करता। आगे है असी इकट्ठे स्कूल जाते हाँ, वी, जो वी आंदा है वी का मतलब वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगती, जिद्दां असीं पहला रूल कीता सी, वी गो टू द स्कूल टुगैदर, टुगैदर का मतलब एक साथ, टुगैदर। इत्थे जांदे हां ते वी क्योंकि आई वी यू दे फर्स्ट फॉर्म लगती है, परंतु जो ही शी इट होवे ते एस या ई एस लगता है पॉजिटिव विच। असीं गल कर रहे हैं नैगेटिव दी, डू नॉट डज नॉट, इत्थे वी लिखिया है, ਇਹਦਾ मतलब जो असीं नैगेटिव बनावांगे इत्थे लिखिया है असीं जांदे हां स्कूल इकट्ठे ते वी गो। जे असीं नहीं जांदे फिर असीं इसनूं चेंज करते हां, वी डू नॉट के डज नॉट, फिर असीं देखांगे वी नाल डू नॉट, वी डू नॉट इकट्ठे स्कूल नहीं जाते, वी डू नॉट इत्थे आएगा गो क्योंकि गो फर्स्ट फॉर्म लगनी है, इस करके वी डू नॉट गो टू द स्कूल टुगैदर, टुगैदर का मतलब एक साथ, हम स्कूल नहीं जाए, नहीं जाते यानी डू डज नॉट और वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, इत्थे डू नॉट लिखा है क्योंकि इत्थे वी लिखा है, वी का मतलब डू नॉट। हुण असीं गल करते हैं नेक्स्ट, ਉਹ एक दूजे नाल प्रेम करते हैं, इत्थे रूल लगेगा दे लव, क्योंकि दे लगाएंगे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगती है, दे लव ईच अदर। हुण क्योंकि नहीं करते रूल चेंज हो जाएगा, असीं लिखांगे दे डू नॉट आएगा या दे डज नॉट आएगा, ध्यान रखो आई वी यू दे, इत्थे आएगा दे डू नॉट। हुण लव आएगा, लव्स आएगा कि लव्ड आएगा, ध्यान रखो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म जो मूल क्रिया है, बेस वर्ब है वो है लव, दे डू नॉट लव, फिर आ गया ईच अदर, इत्थे लिखांगे ईच अदर। अगला सेंटेंस है मैं चाह पींदा हाँ, इत्थे ऐ नहीं कह सकते आई ड्रिंक टी, जो असीं चाह पीण की गल करते हैं असीं लिखते हैं आई टेक टी, यानी मैं चाह लेना, क्योंकि
आई दे नाल हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगती है जो असीं एफर्मेटिव की गल करते हैं, क्योंकि असीं हुण नैगेटिव की गल करनी है। चेंज करांगे, मैं चाह नहीं पींदा, हाँ हटा दिंने आ, लगा रहेगा तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाय नहीं पीता तो आएगा आई डू नॉट। डू नॉट आएगा कि डज नॉट आएगा, असीं फिर रूल देखांगे। आई ना लगेगा डू नॉट, आई डू नॉट टेक दा टेक ही आएगा क्योंकि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है। आई डू नॉट टेक टी, यह साडा सेंटेंस चेंज हो गया क्योंकि इत्थे नैगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट डज नॉट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, इसनू याद रखना है। डू डज कदों लगते हैं, ई एस वाला उदों लगता है, पहले भी कीता सी ही शी इट, या थर्ड परसन सिंगुलर होवे या कोई एक जानवर एक नाम एक चीज़ काम कर रही होवे। इत्थे डू कदों लगता है, जदों आई वी यू दे या प्लूरल होवे। हुण असीं अगला सेंटेंस करते हैं, असीस शोर नहीं करदी। इत्थे सानू सेंटेंस की नबज पकड़नी है, इत्थे वो काम कर रही है कि उसकी आदत है कि वह रूटीन है। इत्थे सानू इन्हां चीज़ों के बारे पता होना चाहिए भी है किस टोन च जिहड़े सेंटेंस बोल रहे हैं। इत्थे लिखिया असीस शोर नहीं करती, उसकी आदत है, इसका मतलब अजे भी शोर नहीं करती। इस बारे कुछ पक्का नहीं है भी उसकी आदत है कि अजे भी करती है, इस करके इनडेफिनेट है। रूल वही लगेगा, पहले असीं लिखांगे असीस क्योंकि नहीं करती, इस करके असीस क्योंकि वो शी है, आई वी यू दे तो कुछ नहीं है क्योंकि वो शी है, इस करके असीस डज नॉट। हुण शोर नहीं करती, असीं हुण कीता सी टेक टी, यानी चाह पीण नूं ड्रिंक नहीं कहते, टेक टी कहने। इस तरह शोर मचाउण दी गल है, मेक ए नॉइज। इत्थे मेक मेड मेड ए तीन फॉर्म ने, परंतु असीं फर्स्ट फॉर्म लिखांगे असीस डू नॉट मेक आ नॉइज। इस तरह असीं देखिया भी जो नैगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट उन्हां दा की रूल है। हुण असीं इसदा लास्ट रूप करते हैं, वह है इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य उसनूं किस तरह करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य विच सब तो पहले लगता क्या वो काम करता है, ही डज हिज वर्क, की वो काम करता है। इत्थे डू या डज पहले आ जाता है, बाकी जिहड़ा सेंटेंस उस तरीके नाल रहिंदा है। जिवें कि इत्थे लिखिया है पहले डू या डज आएंगे, उस तो बाद सब्जैक्ट आएगा। पहले की सी, पहले सब्जैक्ट सी, डू नॉट डज नॉट सी, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म सी। एफर्मेटिव च की कीता सी, पहले सब्जैक्ट सी, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म सी, एस या ई एस सी कदों आप जी नूं पता है, उस तो बाद फिर ऑब्जेक्ट सी। हुण इंटरोगेटिव विच वो जो डू डज है नैगेटिव वाले वो उठ के पहले आ जाएंगे। इत्थे सिंपल विच डू डज नहीं लगा सी, परंतु नैगेटिव डू डज लगा अंदर लगा। हुण इंटरोगेटिव डू डज लगेगा पर उठ के बाहर आ जाएगा। जिमें एग्जाम्पल है, पहले डू डज लगेगा फिर सब्जेक्ट लगेगा क्योंकि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ऐसे परफेक्ट टेंस लगती है, या फिर एस या ई एस कदों लगा सी, गल क्लीयर हो चुकी है। परंतु दोबारा एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि एस या ई एस लगाने वाला जो सारा प्रोसेस है वो डू और डज दे नाल हो रहा है। इस करके नैगेटिव विच एस या ई एस वर्ब नाल नहीं लगेगा, वो उठ के डू और डज का रूप धारण कर चुका है। अगेन डू डज पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि इंटरोगेटिव है, इस करके इंटरोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में आएगा, यह जरूर आएगा। हुण असीं इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तीनों रूपों की प्रैक्टिस करते हैं। अगम उत्थे जांदा है, असीं लिखांगे अगम गो देयर के गोज देयर। सानू पता है अगम एक बच्चा है, वो ही है, और एक नाम असीं गल एक जानवर एक नाम ही शी इट। इत्थे लिखांगे अगम गोज देयर, वो उत्थे जांदा है। अगे है अगम उत्थे नहीं जाता, यदा मतलब डू नॉट डज नॉट। अस लिखांगे अगम आएगा डू नॉट गो देयर या डज नॉट गो देयर, क्योंकि इत्थे अगम है ही शी इट, एक नाम एक जानवर एक चीज जो काम करती है। अगम डज नॉट गो देयर। जो असीं इंटरोगेटिव करांगे असीं डू डज नूं चुक के पहले लियावांगे। इत्थे लिखिआ कि अगम उत्थे जांदा है, असीं लिखांगे डज पहला रूप, फिर आएगा सब्जेक्ट अगम, फिर आएगा गो क्योंकि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगनी है। देयर जो जगह का जिक्र है वो लास्ट में आएगा। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, जो पंक्चुएशंस है वो जरूर क्लीयर करनी है। इस नाल सानू सेंटेंस की आत्मा का पता लगता है। अगला सेंटेंस है तुसी उसनू जानते हो, यू तुसी, ए क्रिया इत्थे लगेगी, यू नो
KNOW उसनू यानी हिम तुसी उसनू जानते हो यानी वो जनानी होगी इस्त्री होगी तो हर आएगा यू नो हिम या यू नो हर सेंटेंस चेंज करते हैं तुसी उसनू नहीं जानते तुसी दा मतलब यू फिर आएगा डू नॉट डज नॉट असी कीता सी डू नॉट दा मतलब आई वी यू दे प्लूरल यू डू नॉट नो ए वर्ब है उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है इत्थे हिम या हर आ जाएगा क्योंकि हिम इत्थे लग गया हिम या हर फिर क्वेश्चन मार्क बनता है कि तुसी उसनू जानते हो इसका मतलब है इत्थे आएगा यू नो हिम यू नो हर जो क्वेश्चन मार्क आएगा फिर रूल आएगा डू डज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आखिर प्रश्नवाचक चिन्ह कि तुसी उसनू जानते हो फिर लगेगा डू यू के डज यू ध्यान रखो डू यू क्योंकि आई वी यू दे डू यू जानते हो क्रिया नो हिम या हर क्वेश्चन मार्क इस तरह असी इस सेंटेंस ਨੂੰ ट्रांसलेट करते हैं डू यू नो हिम की तुसी उसनू जानते हो जे इत्थे लिखिया ਹੁੰਦਾ कि तुसी उन्हां ਨੂੰ जानते हो तो आएगा डू यू नो them क्योंकि वो प्लूरल हो गया इस करके हिम की जगह फिर आ गया them सेंटेंस चेंज करते हैं हम उसकी मदद करते हैं हम दा मतलब है वी मदद करना क्योंकि क्रिया पहले लगाओगे मदद करने का मतलब हेल्प हेल्प्स आएगा कि हेल्प आएगा ध्यान रखो ही शी इट एक नाम एक जानवर एक वस्तु जो काम कर दी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ लगता है एस या ई एस परंतु इत्थे लिखा है वी आई वी यू दे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वी हेल्प हिम उसकी यानी जे लेडी होवे असि लिखांगे वी हेल्प हर फुल स्टॉप सिंपल तौर पर एंड और एफर्मेटिव है फिर है हम उसकी मदद नहीं करते रूल चेंज होएगा हम दा पहले सब्जेक्ट लगेगा वी हुण इत्थे डू नॉट डज नॉट क्योंकि जे एक बंदा हुंदा कोई नाम हुंदा ही शी इट एक नाम एक जानवर या एक वस्तु तां दा डज नॉट क्योंकि इत्थे लिखिया वी आई वी यू दे प्लूरल इहदा मतलब डू नॉट वी डू नॉट हेल्प्स नहीं हेल्प्स नहीं क्योंकि डू डज तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगनी है वी डू नॉट हेल्प हिम और हर ए बन गया साडा सेंटेंस नैगेटिव इस तरह से क्वेश्चन मार्क बनाने रूल सामने रखो डू डज पहले आएगा फिर आएगा सब्जेक्ट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आएगी लास्ट क्वेश्चन मार्क लगेगा क्या जो क्या वाला आ जाए फिर आएगा डू डज पहले प्रश्न बन जाएगा क्या हम उसकी मदद करते हैं फिर आएगा डू डू देना आएगा सब्जेक्ट वी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म हेल्प हिम और हर क्वेश्चन मार्क डू वी हेल्प हिम अगर आएगा क्या हम उसकी मदद नहीं करते जो नॉट है हमेशा मेन वर्ब तो पहले आएगा डू वी नॉट हेल्प हिम जे नेगेटिव है मेन वर्ब तो पहले नॉट लगेगा इस गल का ध्यान देना अगला सेंटेंस है पक्षी हवा में उड़ते हैं अगर हुंदा पक्षी हवा में उड़ता है एक वचन होना सी एक वचन लिए असी लगाने एस या ई एस इत्थे लिखांगे पक्षी हवा में उड़ते हैं इसका मतलब प्लूरल है प्लूरल का मतलब है आई वी यू दे और प्लूरल इसका मतलब वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगती है लिखांगे असी बर्ड्स उड़ना फ्लाई आएगा कि फ्लाइज आएगा फ्लाई की स्पैलिंग हो रहा है फ्लाइज की चेंज हो जाती है क्योंकि इत्थे प्लूरल है वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगती है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर बर्ड्स फ्लाई इन द एयर इत्थे एयर की जगह स्काई भी जैसे आसमान में उड़ते हैं तो फिर स्काई क्योंकि इत्थे हवा लिखा है इस करके एयर आएगा पक्षी हवा में नहीं उड़ते डू नॉट डज नॉट पहले असीं लिखांगे बर्ड्स फिर असीं डिसाइड करांगे कि यह प्लूरल है डू नॉट आएगा कि डज नॉट आएगा जे प्लूरल है डू नॉट बर्ड्स डू नॉट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है फ्लाई इन द एयर उस तो बाद है क्या ਇਹਦਾ मतलब डू डज पहले आ जाएंगे उस तो बाद सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा जे नॉट है तो वर्ब तो पहले फिट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म है क्वेश्चन मार्क लास्ट विच है क्या पक्षी हवा में उड़ते हैं हुण डिसाइड करना कि बर्ड की है इत्थे बर्ड्स है प्लूरल है इत्थे आएगा डू डज नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल हमेशा डू दा आंदा है डू द बर्ड्स क्योंकि प्लूरल है फिर आएगा फ्लाई एफ एल वाई इन द एयर या स्काई जे आसमान होंदा तो स्काई हवा लिखा है तो एयर क्वेश्चन मार्क डू द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर
तो विद्यार्थियों ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੜਚਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਮ ਵਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਜਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।